Well, viewers, the Modi government had announced gallantry awards for 6 members of the UP STF team, but now these awards have become a political tool. On one hand, our police personnel work day and night to maintain law and order, while on the other hand, the Samajwadi Party is raising questions about their bravery. These 6 UP STF officials were involved in gunning down slain Mafia Atiq Ahmed's son Asad and his aide Mohammad Ghulam in retaliatory firing in Jhansi in April 2023. The Samajwadi Party MP Ruchi Veera has now strongly condemned the government's decision to award medals to personnel involved in encounters, calling it shameful. Another SP leader also expressed similar views, saying that the present government is playing politics by using bulldozers. Listen in. देखिए, ये तो मेरा ख्याल है डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि किसी की इतने सारे पुलिस वालों के सामने इस तरह से हो जाए, तो ये तो मतलब बहुत ही लचर व्यवस्था है और इन चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि बुलडोज़र की राजनीति से काम नहीं चलेगा। इन चीज़ों को बड़े मतलब अफसोस की बात है। सम्मानित किए जाना, मैं क्या कहूँ, मैं तो भाई अगर कुछ अच्छा काम किया होता उन्हें तो सम्मानित करते। अब ये क्या कि आपने मतलब इस तरह से एनकाउंटर, आप जानते हैं कैसे होते हैं एनकाउंटर। मौजूदा सरकार है, लगातार चाहे बुलडोजर हो, ये संदेश दे रही है कि जो हम भय की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब लोग जागरूक हैं और जो ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। हमने देखा मैनपुरी में भी किस तरह बुलडोजर लाके ये संदेश दिया गया था भय की राजनीति का। Well, the former DGP Vikram Singh has responded to the claims of the Samajwadi Party and said that these awards are reserved for those who have demonstrated unparalleled bravery and selflessness in the face of danger. Listen in. I would like to congratulate the gallant officers of the UP Special Task Force who successfully gunned down Asad and Ghulam, the notorious and dreaded criminals who were responsible for the Umesh Pal murder and other heinous offences. Regrettably, some politicians' friends criticize it, and they are of the opinion that they are aware how encounters happen and also regret how come gallantry medals are being awarded to these police officers. I beg to be different. May I submit with the greatest of respect that the pain, sacrifice and effort that go behind any police encounter, genuine one at that should be saluted and praised. Now, the BJP has strongly condemned the Samajwadi Party's criticism of the awardee, suggesting that such remarks reveal the mentality of the Samajwadi Party. The BJP contended that instead of questioning these prestigious honors which recognize the bravery and sacrifice, the Samajwadi Party should be scrutinizing their record. They accused the Samajwadi Party of sheltering criminals during their tenure and failing to control the rampant crime and attacks on police stations. देखिए, ये समाजवादी पार्टी की हल्की सोच का प्रतीक है कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर, एक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। उनको सवाल उठाना चाहिए था कि वो अपराधियों को किस तरह से संरक्षण देते हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधियों को किस तरह से संरक्षण दिया जाता था और पुलिस थानों पर किस तरह से हमले होते थे। तो समाजवादी पार्टी की सोच, उनकी नीयत और उनका कार्यप्रणाली, इसको जनता बेहतर तरह से जानती है। Across to my colleague Manish joining us on the broadcast with the details. Manish, the politics around it continues. These are brave police officers who have shown their bravery on the field in the face of danger, and are yet, unfortunately, politics playing out over it. देखिए, बिल्कुल यही मानसिकता पुलिसकर्मियों को हताश करती है। सबने देखा कि अतीक अहमद का बेटा असद जिस इनकाउंटर में मारा गया, उससे पहले प्रयागराज में सीसीटीवी फुटेज में एक वकील को मारते समय उसका चेहरा दर्ज हुआ था। खुलकर सरेआम उसने हत्या की। उसके बाद लगातार पुलिस उसे तलाश कर रही थी और पुलिस ने बहादुरी का परिचय देते हुए एसटीएफ की 6 सदस्यीय टीम ने उसे मार गिराया था झांसी में। लेकिन बावजूद इसके, जहां पर विपक्षी पार्टियों को सरकार के साथ कम से कम ऐसे मामले में जहां पर अपराधियों पर लगाम लग रही है, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। सरकार के साथ कदम ताल बिठाते हुए पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनके आत्मविश्वास की हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा न करके विपक्षी लगातार सवाल उठाते हैं
जो एक्शन योगी सरकार की ओर से लिया जा रहा है। अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया था ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन सिंपैथी अतीक अहमद के प्रति समाजवादी पार्टी के नेताओं की उनके बयानों में स्पष्ट नजर आती है। कोई एक घटना नहीं है, बल्कि एसटीएफ की टीम ने लगातार सिलसिलेवार ढंग से 2017 के बाद से एक के बाद एक कार्रवाई की है, एक के बाद एक खुलासे किए हैं। यूपी में अगर आज क्राइम कंट्रोल में हेल्प मिल पाई है तो उसके पीछे एसटीएफ की भूमिका भी रही है। कई ऐसे मामले हैं जिनका अनावरण एसटीएफ ने किया है, तो ऐसे में उनके कामकाज को देखकर राष्ट्रपति ने ये इस जो गैलेंट्री अवार्ड है, जो पुरस्कार है उसके लिए उनका नाम तय किया गया। लेकिन यूपी में अब चाहे वो समाजवादी पार्टी की सांसद हो या फिर बाकी नेता हो, उन्हें शायद ये हजम नहीं हो रहा, जिसके चलते इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं।